अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। I pay my obeisance on the 3 feet of my Guru, my Lord, Swami Chinmayananda. And I believe whatever little I have learnt in my life, I have learnt because I had the opportunity to see him, to be with him for a while. And let me tell you, I was a very small kid then. Swamiji used to visit the school, and Swamiji insisted, you should come to the Gita Jnana Yajna. And you would not realize, as a small kid, though I hardly understood what Swamiji spoke, I was in nursery and prep class, but the vibration of the words, the way he spoke, it assimilated within. And this is the power of great people, this is the power of spirituality. This is the power that great men can do to you. And I'll tell you very frankly, I share this with most of the people, that when my mother used to catch hold of me and take me to this Gita Jnana Yajna sessions, then somewhere within me I felt, मुझे इनके जैसे बोलना है. I did not know what Gita Jnana Yajna was, and I was too small to get all these things, but I felt enchanted. Because my parents used to discuss him, they used to say, marvelous, he's enchanting. And because as a kid I used to listen to my parents, I felt, मुझे भी ऐसा बनना है. वो तो बहुत बड़ी बात है. But this is how I always call upon my friends, अपने बच्चों को ऐसे विद्यालय में भेजो जहां से संस्कार अपने आप अंदर आ जाए. कुछ करना नहीं पड़े, अपने आप आ जाए. और वैसे मैं तो बहुत छोटा बच्चा हूं, मैं इतने ज्ञानियों के बीच में क्या बोलूंगा, मगर छोटी छोटी 2-3 चीज जो मैं समझता हूं, I think I should be sharing with you. Mr. Singh has really spoken his heart out, and he has been very successful in assimilating between science and spirituality. Thanks to you, sir. And you were saying at the end of your speech कि केवल बाह्य आडंबर से काम नहीं चलेगा, कि कभी दीप जला दी, कभी धूप जला दिया, कभी आपने पूजा कर ली, कभी आपने आरती कर ली, इससे काम नहीं चलेगा, उसके अंदर डूबना भी पड़ेगा. इसमें I have a very different take. Let me begin by narrating a small story. एक शिकारी था. There was a hunter long many years ago. He used to catch hold of these birds, he used to defeather them, used to sell the flesh in the market, used to sell the feather otherwise, and that's the way he was living in his world. Gradually this hunter grew old. ये बूढ़ा होता चला गया. तो स्वाभाविक है, बूढ़ा होने के बाद वो स्फूर्ति नहीं रही. He was not that active, he could not run behind the birds, could not catch them. The birds would fly away. So gradually he started getting poorer and could not fend himself and his family. So one day he was really devastated. He thought of committing suicide, went to Mother Ganga. Just before taking the plunge to Ganga, what should he see? He saw someone like Swami Chidrupanandaji dressed in a robe, with beard, with a very saintly look, peace, calm, with a kamandal, praying to the sun god in the Ganga. He was praying to the sun god, he was giving Anjali, and he saw cranes and other birds flocking around the sannyasi, not afraid of the sannyasi. He told, lo and behold, these birds are so afraid of me. ये तो मुझसे इतनी डरती है चिड़िया, ये मेरे पास नहीं आती. मगर ये सारे चिड़िया स्वामी जी के पास कैसे पहुंचे हुए हैं? तो उसने किसी से पूछा, ये चिड़िया यहाँ कैसे पहुंची हुई है? लोगों ने कहा, देखो, जो लोग ऐसे ड्रेस पहनते हैं ना, चिड़िया भी जानती है कि ये कुछ नहीं करते हैं, ये चिड़िया को नहीं पकड़ते हैं, इसलिए चिड़िया बेफिक्र होके वहां घूमते हैं उनके पास. बोला, अच्छा. Then he rushed to a drama company. He got similar kind of dress made. He told, give me a pair of those robes, you know, the fiery color ones, and give me a set of beard also, and a mala and a kamandal. Then immediately next day, dressed in that robe, he went to River Ganga, took a dip, and in the same position he stood. So all the birds, knowing very well that he would not be disturbing him, he's a sadhu, all these birds flocked around him. And lo and behold, एक एक करके सबको पकड़ लिया, अपने जेब में भरा, and his life started running like anything.
He did this for many years, many months. Then he realized, why should he be paying a rental for a false beard, for a false robe? Why not grow a real beard, and why not have a real robe? So he went to the market and fetched a real robe, and then he grew his own beard, had his own mala and his own kamandal. So with this dress on, he went to the Ganges every day. But meanwhile, what happened was, whenever he would go to the marketplace, whichever path he would go, people would come to him, prostrate in front of him. They would even offer obeisances. They would even offer prasadam to him. Ki Swami ji, aap kahan ja rahe hain? Kha ke jaiye hamare ghar pe, aise mat jaiye. Then he told, why should I go to Ganga and catch hold of all these birds when people are offering me all kind of good foods and everything? So nothing to be done. Then he told, ye jo Swami ji yahan nahate hain, kuch to aur bhi karte honge, main bhi follow karta hu. Then he saw that Swamiji used to go out from the Ganga and sit under the banyan tree and say Hari Om the whole day, eyes closed, very calm, and people used to come. When it was lunchtime, he was offered with prasadam, he used to consume the prasad, and therefore he was performing his yajnas, he was doing Hari Om. He told, ye karne se zyada acha hai. क्या करना इतना कुछ चिड़िया पकड़ना इतना, let me be under a banyan tree, fixed address, and every day people will come and feed me. So all the morning he would do Hari Om, Hari Om, Hari Om, and people would feed him. And doing this Hari Om, Hari Om, Hari Om, he got moksha one day. Ultimately, doing this kirtan, bhajan, Hari Om, even in a worldly manner to gain something, what he gained was ultimately was what we all want to gain, that is moksha. So even if we indulge ourselves in all the karma kanda for mere meaning of indulging, please do that as well. Because even that at the end of the day gives us the kind of solace which is very important. कितना ज्ञान है, हम तो कुछ नहीं जानते हैं, वेद और गीता के बारे में बहुत कम जानते हैं. एक बार योग वशिष्ठ में भगवान राम बड़े परेशान थे, तो बहुत परेशान थे, तो वशिष्ठ ने कहा, राम पूछो ना जो पूछना है, मैं तुम्हें जवाब दूंगा, तुम परेशान मत हो. तो राम ने पूछा, वशिष्ठ हे गुरु, ये जो ब्रह्मांड है ये निर्माण से पहले, उपजने से पहले कहाँ से आता है और समाप्ति के बाद कहाँ चला जाता है, प्रलय के बाद कहाँ चला जाता है? तो वशिष्ठ हंसे, बोले वो वहीं से आता है. मैं इसको आप सेक्सिस्ट टर्म में मत लीजिएगा, बट ये शुद्ध है कि वो वहीं से आता है जहाँ से इनफर्टाइल वुमेन का बेटा आता है, बांझ का बेटा जहाँ से आता है वहीं से आता है, और मृत्यु के पश्चात वहीं चला जाता है जहाँ बांझ का बेटा चला जाता है. तो राम बोले, मतलब कैसे? बांझ का बेटा, तो बांझ का तो बेटा ही नहीं होगा. इनफर्टाइल वुमेन विल नॉट हैव अ चाइल्ड, सो वेयर डज ही कम फ्रॉम एंड वेयर डज ही गो? सो व्हाट आर यू सेइंग मी गुरुदेव? गुरुदेव बोले, यही तो, ना ये ब्रह्मांड है, ना बनता है और ना कहीं जाता है. तो राम बोले, नहीं, मैं नहीं समझ पा रहा. तो गुरुदेव ने एक रस्सी लिया, एक रस्सी लेके उसके आगे आग लगा दिया और आग को बुझा दिया. जैसे हम देखते हैं कई सिगरेट पीने वालों की दुकानों पे टंगी रहती है कि लोग जाके वहां सिगरेट पी लेते हैं, बुरी बात है, इंजूरियस टू हेल्थ, बट इट्स देयर. तो ऐसा एक रस्सी बनाया और रस्सी बना के गोल गोल घुमाया. बोला, राम क्या देख रहे हो? राम ने कहा, एक आग का गोला देख रहा हूं. बोला, अच्छा दिख रहा है ना आग का गोला? बोला, फिर रोक लिया. बोले, राम आग का गोला कहाँ गया? तो राम बोले, गुरुदेव आग का गोला तो था ही नहीं. तो गुरुदेव बोले, राम जैसे आग का गोला था नहीं मगर उसका आभास हुआ, क्योंकि एक ही बिंदु थी, वो जब घूमा तो आपको आभास हुआ कि एक आग का गोला है, मगर जब वो बिंदु स्पंदन बंद कर देता है तो वो आभास रुक जाता है, और चूंकि वो कहीं था नहीं वो कहीं गया नहीं. ठीक उसी प्रकार एक ही ब्रह्म है, जब वो स्पंदन करता है तो ये ब्रह्मांड की अनुभूति हो जाती है. जब वो स्पंदन बंद हो जाता है, चूंकि वो कहीं से नहीं आता, वो कहीं नहीं जाता, ये अनुभूति बंद हो जाती है. कितना अद्भुत है. कुछ है नहीं मगर सब कुछ कितना जानने की आवश्यकता है, यही मैं कभी समझ नहीं पाता हूं कि कुछ भी नहीं है, ये आप, हम, ये ब्रह्मांड, ये कुछ भी नहीं है, मगर फिर भी कितना कुछ जानने की आवश्यकता है केवल इस इन्फ्रेंस तक पहुंचने के लिए कि कुछ नहीं है. कुछ नहीं है ये समझने के लिए सब कुछ जानना पड़ता है. ये बड़ा अत्याचार है और यही काम गुरु का है, यही काम गुरु का है. अभी सिंह साहब ने बहुत अच्छी बात कही. जब आइंस्टाइन की माता गुजर गई, न्यूटन की माता गुजर गई, तो न्यूटन कितना रोए और कहे कि अच्छा मैं तो न्यूटन मगर मेरी मां गुजर गई, मैं कुछ नहीं जानता हूं. यही फर्क होता है गुरु
और अध्यापक में। यही फर्क होता है गुरु और वैज्ञानिक में। गुरु का एक ही काम है, गुरु का काम है ये बता देना कि भाई तुम कुछ नहीं जानते हो, और जब तुम शून्य हो जाओगे ना तभी प्रभु का तुम में अवतरण होगा। कुछ नहीं जानते हो मतलब अहंकार शून्य हो जाओ। तुम ये जो मेरे पास भरा हुआ घड़ा लेकर आए हो ना कि सब कुछ जानते हो, ये मिथ्या है, इस घड़े को खाली कर दो। और पूरे जीवन गुरु आपके और हमारे घड़े को खाली करता है, वो खाली करने का काम करता है ताकि उस शून्यता में, उस खाली में ईश्वर का अवतरण हो जाए। और वैज्ञानिक और अध्यापक क्या करते हैं? वो उस घड़े को भरता है। ये भी सुनो, ये भी थ्योरम है, ये भी ग्रेविटेशन है, ये भी नॉलेज है, सब नॉलेज को रखो अपने अंदर, रखते चले जाओ, रखते चले जाओ, रखते चले जाओ, और फिर वो छलक जाता है तो न्यूटन को रोना पड़ता है, क्योंकि इतना कुछ समझना पड़ता है। देखिए, गुरु और अध्यापक, गुरु और वैज्ञानिक कभी कंपेयर ही नहीं किए जा सकते। एक का अंतिम परिणाम, द एंड रिजल्ट ऑफ गुरु, आई बिलीव इज निशब्द, वर्डलेसनेस। ही टीचेस यू निशब्दता। जब आपका ज्ञान, हमारा ज्ञान स्वामी जी के पास कंप्लीट हो जाएगा तो उसका एक ही भाव निकल कर आएगा कि मैं कुछ ना बोलूं, आप कुछ ना सुने। निशब्द, मैं भी शांत, आप भी शांत, मगर जो मैं चाहता हूं वो आप भी समझ जाएं और जो आप कह रहे हैं वो भी मैं सुन लूं। शब्द ना हो, ये निशब्द गुरु बना देता है। बड़े बड़े जब गुरु मिलते हैं ना तो वो कहते थोड़ी है कुछ भी, वो सिर्फ आंखों आंखों में बात कर लेते हैं। वो जान जाते हैं क्या हो रहा है क्या नहीं, तुम कैसे, मैं कैसे, वो बात ही नहीं करते। और सबसे बड़े अज्ञानी जो होते हैं, और माफ कीजिएगा वो टेलीविजन चैनल में आप रोज हम सबको देखते हैं वो कितना बोलते हैं हम सब कितना बोलते हैं, मुझे तो बड़ा तकलीफ और कष्ट होता है कि कितना बोलना पड़ता है। तो गुरु का एंड रिजल्ट इज निशब्दता, अध्यापक और साइंटिस्ट का एंड रिजल्ट इज शब्द। वो शब्द सिखाते हैं, ये निशब्द सिखाते हैं। गुरु और अध्यापक, गुरु और वैज्ञानिक दो अलग आयाम हैं, दे आर डिफरेंट बीइंग्स। गुरु एक आयाम पे है, अध्यापक एक आयाम पे है। देखिए, गुरु और शिष्य जो होता है ना, इनके बीच का डिफरेंस आयाम का डिफरेंस है, परिमाण का डिफरेंस नहीं है कि गुरु ज्यादा जानता है शिष्य कम जानता है, परिमाण का डिफरेंस नहीं है। अध्यापक और शिष्य में परिमाण का डिफरेंस है कि अध्यापक बहुत जानता है, शिष्य कम जानता है। जो चीफ वैज्ञानिक है वो बहुत जानता है, जो जूनियर साइंटिस्ट है वो कम जानता है। मगर एक दिन ऐसा आएगा जब शायद प्रोफेसर से शिष्य ज्यादा जान जाएगा। एक दिन ऐसा आएगा जब सीनियर साइंटिस्ट से जूनियर साइंटिस्ट हो सकता है नोबेल प्राइज ज्यादा पा जाएगा। मगर कभी ऐसा दिन नहीं आएगा जब शिष्य गुरु को सरपास कर जाएगा, क्योंकि दोनों अलग अलग आयाम में है। गुरु प्रभु के आयाम पे है और शिष्य संसार के आयाम पे है। दे आर डिफरेंट बीइंग्स। वहां परिमाण का फर्क नहीं है, वहां गुणात्मक फर्क है, गुण का फर्क है, बीइंग का फर्क है। मैं लास्ट में एक ही पैराग्राफ में, ये तो बहुत बड़ी बड़ी बातें थी, जो छोटी बात मैं फॉलो करता हूं मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा कि जीवन को मैं किस रूप में देखता हूं और मैं उसमें खुश क्यों हूं। अब देखिए, बहुत बड़ी बातें हम सीखें, सीखना भी चाहिए, मगर जो अभी कलयुग में कहा गया है पंचदेव पूजनीय है, वो क्यों है और उससे क्या हमें सीखना चाहिए और हमें क्या फॉलो करना चाहिए। पंचदेव में सूर्यदेव पूजनीय है, प्रथम गणेश पूजनीय है, दुर्गा माँ पूजनीय है, शिव पूजनीय है और अंत में विष्णु पूजनीय है। ये पंचदेव हमारे कलयुग में कहा गया, आप इन पांचों का पूजा करो। इससे क्या लाभ होता है भौतिक दुनिया में, मैं आपसे शेयर करूंगा अंत में। देखिए, सूर्यदेव पूजनीय है। सूर्य किससे प्रसन्न होते हैं? सूर्य प्रसन्न सूर्य नमस्कार से होते हैं। आप ब्रह्म मुहूर्त में 3:30-4 बजे सुबह भोर जब पाँव फुटता है, ब्रह्म मुहूर्त में जब पहले कलरव आप पंक्षियों की सुन पाते हैं, उस समय आप उठिए और आप अर्घ्य दीजिए सूर्य को। ओम सूर्याय नमः आदित्याय नमः करके आप उनको अर्घ्य दीजिए तो कहा जाता है सूर्य प्रसन्न हो जाते हैं। क्या वैज्ञानिक कारण है इसके पीछे? जो भी व्यक्ति 3:30 या 4 बजे उठेगा सूर्य को नमस्कार करने के लिए, उसको पहले तो जल्दी सोना पड़ेगा। अगर आप 8 या 9 बजे नहीं सोएंगे तो 3:30 बजे उठ नहीं सकते हैं। जो व्यक्ति 8 या 9 बजे सोएगा वो किन चीजों से वंचित रहेगा ये आप जानते हैं। जो दिल्ली की सोशल सर्कल है उनका जीवन तो आरंभ ही 9 बजे के बाद होता है। तो ना वो मदिरा पान करेगा, ना वो गलत खाना खाएगा, ना वो कहीं गलत जगह जाएगा। उसको तो 8 बजे सोना होगा ताकि वो सूर्य को प्रसन्न कर सके। तो एक अनुशासन में जीवन जिएगा।
अनुशासित जीवन के लिए बाध्य कर देंगे सूर्यदेव, क्योंकि आपको जल्दी उठना है, जल्दी सोना है और दिनचर्या पूरा आपको सही रखना है। अनुशासन प्रथम सोपान है, सूर्य अनुशासन सिखाते हैं। दूसरा, गणेश आ गए। गणेश किससे प्रसन्न होते हैं? गणेश प्रसन्न होते हैं जब आप अपना जीवन का प्रथम समर्पण कोई भी काम करने से पहले शुक्लांबरधर कह के आप गणेश जी को समर्पित कर देते हैं। अजम निर्विकल्पम हम लोग गाते थे चिन्मया स्कूल में, मुझे याद है जब बाल विहार होता था। तो आप ऐसा करके गणेश को जब प्रथम समर्पण करते हैं तो गणेश उससे प्रसन्न हो जाते हैं। आप देखिए इससे क्या लाभ होता है। समर्पण करने का भाव, और प्रथम समर्पण में हमेशा आपका भाव शुद्ध होता है। आप जब प्रथम भोग भगवान को देते हैं ना, आपको लगता है कि मेरा हाथ साफ होना चाहिए, जूठा नहीं होना चाहिए, इसमें मक्खी नहीं बैठनी चाहिए। आप जब, मुझे याद है जब मैंने मेडिकल पूरा किया और मुझे 1200 रुपए का स्टाइपेंड मिला, तो मैं पहला क्या खरीदूं, मम्मी के लिए एक साड़ी खरीदूं, मैंने ये सोचा, और एक कॉटन साड़ी, क्योंकि 600-700 रुपए में उस समय मिल जाता था। तो मैं कॉटन साड़ी लेके इतने खुशमन से गया कि माँ को मैं पहला कोई गिफ्ट दे रहा हूँ। तो मुझे पता है उसमें कितना प्यार था और कितना ममत्व था उसमें, और उस गिफ्ट को माँ ने भी ऐसे रिसीव किया मानो उसको क्या मिल गया हो। तो आप देखिए जो प्रथम समर्पण होता है उसमें कभी भ्रष्टाचार नहीं होता है। मैं अपनी माँ को कभी भी वो गिफ्ट करना नहीं चाहूंगा जो खराब ढंग से कम पहला समर्पण तो मैं वैसा नहीं करना चाहूंगा। प्रथम समर्पण में हमेशा शुद्धता होता है। अनुशासित जीवन और समर्पित जीवन, आप समर्पण करते जाएं, गणेश प्रसन्न रहेंगे, दूसरे देवता। अनुशासन, दूसरा समर्पण, जो भी समर्पण करेगा वो सक्सेसफुल होगा, सफल होगा। तीसरा, कौन प्रसन्न होती है? दुर्गा प्रसन्न होती है। दुर्गा किससे प्रसन्न होती है? चंडी पाठ से प्रसन्न होती है। वो पाठ करने के प्रोनंसिएशन से, उच्चारण से प्रसन्न होती है। त्वं हि दुर्गा दश प्रहरण धारिणी कमला कमल धरण विहारिणी, त्वं स्वाहा स्वधा त्वं हि वषट्कार स्वरात्मिका। किस प्रकार से आप उच्चारण करते हैं, ऐसा लगना चाहिए दुर्गा स्वयं वहां प्रकट हो गई है। इससे दुर्गा प्रसन्न होती है। समझना पड़ेगा इसके पीछे का भाव क्या है। जो आदमी उच्चारण कर सकता है, जो मंत्रोच्चारण सही कर सकता है, वो श्वास पे कंट्रोल कर सकता है, अर्थात योगी है। बिना श्वास के ऊपर पकड़ के आप उच्चारण नहीं कर सकते हैं। बिना योगी बने आप श्वास पे पकड़ नहीं रख सकते हैं। अनुशासित होना जरूरी है, समर्पित होना जरूरी है, उसके साथ योगी होकर आपने अपने आप पर भी कंट्रोल रखना है, इंद्रियों पर कंट्रोल रखना है। ये मां सिखाती है योग के माध्यम से। इसलिए जो अष्टांग योग की बात कर रहे थे, अष्टांग योग तीसरे सोपान पे आ गया। पहले अनुशासित, साधारण अनुशासन, समर्पण, और फिर आप हठ योग में रहिए। योग करके अपने आप को बिल्कुल प्रभु के पास रखिए। चतुर्थ देव प्रसन्न होते हैं शिव। आप अनुशासित हो सकते हैं, आप समर्पित हो सकते हैं, आप योगी हो सकते हैं, मगर शिव किससे प्रसन्न होते हैं? शिव प्रसन्न होते हैं अहंकार रहित भोले बाबा हैं। वो भोलेपन से प्रसन्न हो जाते हैं। आप कैसे भी करके भोलापन दिखा दीजिए, अपने अहंकार को तिलांजलि दे दीजिए, अहंकार को छोड़ दीजिए, शिव आपके हो गए। आप कितने भी बड़े अनुशासित व्यक्ति हो सकते हैं, कितने बड़े दानी और समर्पित कर्ता हो सकते हैं, आप कितने भी बड़े योगी हो सकते हैं, योग को साध सकते हैं, आप में अहंकार है तो आप रावण बनेंगे, राम नहीं बनेंगे। रावण के पास ये सारे गुण थे, अनुशासन का गुण था, समर्पण का गुण था, योग का गुण था, मगर उसके पास शिव की भक्ति होते हुए भी अहंकार नहीं छूटी थी, इसलिए वो विष्णु को नहीं पा पाए। इसलिए अहंकार छूटना चाहिए। अंतिम सोपान किसका है? वो कृष्ण का है, मेरे इष्ट देव है, विष्णु का है। विष्णु किससे प्रसन्न होते हैं? विष्णु प्रसन्न होते हैं, कृष्ण प्रसन्न होते हैं अलंकार से। वो नृत्य से प्रसन्न हो जाते हैं, संगीत से प्रसन्न हो जाते हैं, रात से प्रसन्न हो जाते हैं। अद्भुत है यहाँ की दुनिया। आप देखिए, आप अनुशासित हो सकते हैं, आप संस्कारी हो सकते हैं, आप समर्पित हो सकते हैं, आप योगी हो सकते हैं, आप अहंकार रहित हो सकते हैं, मगर आपके जीवन में प्रेम नहीं तो आप कुछ भी नहीं हो सकते। प्रेम, निर्मल प्रेम होना चाहिए। रोमांस, नॉट द काइंड ऑफ रोमांस दैट वी सी इन मूवीज। हर पल जीने की चाहत। कृष्ण हमेशा डुबकी लगा के जीते थे, हम हमेशा जीवन सतह पे जीते हैं। हम बहुत सतही लोग हैं। एक भाषण देना है, डिनर करना है, सो जा। कितने सतह में
मगर डुबकी लगा के जिंदगी को जीने की क्षमता किसी में थी तो वो प्रभु भगवान कृष्ण में ही थी। जब वो नाचते थे तो ऐसा नाचते थे मानो और नाचने के सिवा दुनिया में कुछ नहीं है। इसलिए कृष्ण एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जो नाचते नाचते भी ब्रह्म को प्राप्त कर जाते थे। जब बंसुरी बजाते थे तो ऐसे बजाते थे मानो दुनिया में कोई दूसरा काम नहीं है, केवल बांसुरी बजाने के लिए ही उनका जन्म हुआ है। इसलिए बांसुरी बजाते बजाते भी ब्रह्म को प्राप्त कर जाते थे। कृष्ण जब चक्र उठाते थे तो ऐसे चक्र उठाते थे मानो दुनिया में कोई और उनका काम नहीं है, केवल अधर्म का नाश करना ही उनका काम है। इसलिए उनके हाथों से ही अधर्म का नाश हुआ। कृष्ण के जीवन में कोई निषेध नहीं था। सबके जीवन में निषेध होता है। We all say no to something to get something. Krishna said yes to everything, yet he got everything because yes is positive. इसलिए मुझे लगता है हम जीवन में यस कहें, कृष्ण की तरह जीवन के सतह पे नहीं मगर जीवन में डुबकी लगा के जिए, अहंकार रहित रहे और अनुशासित रहे, जैसा कि हमारे गुरुदेव स्वामी चिन्मयानंद जी ने हमेशा कहा है। हरिओम। Dr. Sambit Patra, thank you so much for your very thought-provoking speech.